Good morning, students. Today's topic is the thief's story. Okay. This story is in your book Footprints Without Feet. Okay. This is your chapter number 2. Let's start with the story. The author of this story is Ruskin Bond. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. जो thief है वो बोलता है when I met Anil, I was still a thief. I was a thief when I met Anil. And he was only 15. The thief was only 15 years old. Okay? And he's saying that when I met Anil, I was experienced and fairly successful in stealing things. Anil was watching a wrestling match, and when the thief approached him, he said that he was 25 years old and he was lean fellow, and he looked very easy, simple, and these type of people are easy target of thieves, because thief can rob them easily. He approached Anil and he said, तुम एक रेसलर लग रहे हो. वो क्यों? क्योंकि उसको क्या थोड़ा सा फ्लैटर कर रहा था ताकि उसको फ्रेंड्स बन सके. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said once, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. अब वो बोलता है, उससे पूछता है कि यू लुक लाइक अ रेसलर, आर यू अ रेसलर? तो अनिल है, ही क्वेश्चन हिम बैक, वेल डू यू, कि तुम भी करते हो क्या? तो अब वो थोड़ा सा शॉक हो गया, तो बोलता है कि येस आई डू अ रेसलिंग अ बिट. सो अनिल asked him what's your name. He said my name is Hari Singh, है ना. And the Hari Singh was a fake name. He actually that thief changed his name every month so that nobody can recognize him, or no police can recognize him, or the former employer recognized him. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब फिर क्या है, दोनों एक दूसरे वो देखने लग गए रेसलर्स को, और अनिल जो है वो चुपचाप से चला गया, वो उसको फॉलो करने लग गया. तो अनिल बोलता है हेलो अगेन, वापस से उसको देख के हेलो किया. तो जो हरी है, जो थीफ है, वो बोलता है, स्माइल करता है, उसको बोलता है आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ.
तो अनिल बोलता है कि भाई मैं तुमको पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। आई थॉट दैट फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. तो जब जो वो है हरी सिंह थीफ, वो एक बार सोचता है कि यार कहीं मैंने गलत इंसान को चूज़ नहीं कर दिया कि चोरी करूँगा इस पे। तो बोलता है, फिर उसको बोलता है कि यार ठीक है पैसा नहीं तो क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो अनिल बोलता है अगर तुम पका सकते हो, अगर इफ़ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू। तो वापस झूठ बोलता है कि यस आई कैन कुक। तो बोलता है ठीक है, इफ़ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द Jumna sweet shop, Jamna sweet shop, and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind. He will. He had teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like a educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब जो अनिल था वो उसको लेके गया जमुना स्वीट शॉप पे और बोलता है कि तुम बालकनी में सो जाओ। दैट नाइट ही कुक्ड वेरी टेरेबल फूड। ही कुक्ड द हरी सिंह, है ना, द थीफ, एंड ही न्यू दैट ही कुक्ड टेरेबल बिकॉज अनिल गेव दैट फूड टू द स्ट्रीट डॉग, मतलब जो गली के कुत्ते हैं उनको उसने खिला दिया। एंड और अनिल उसको बोलता है कि चले जाओ, टू टोल्ड हिम टू बी ऑफ, बट ही हंग अराउंड, ही स्टेड देयर एंड ही वॉज स्माइलिंग। और उसको देख के अनिल भी उसको देख के हंसने लग गया। फिर वो उसको बोलता है कि चल कोई बात नहीं, आई टीच यू हाउ टू कुक एंड आई टीच यू हाउ टू राइट योर नेम एंड एड नंबर्स एंड लेटर ऑन आई ऑल्सो टीच यू टू फॉर्म होल सेंटेंसेस। तो हरी जो था उसको ये था कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो अगर मैं एजुकेट हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से चोरियां कर सकता हूँ और अलग अलग जगहों पे जाके चोरी कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब वो बहुत खुश था अनिल के लिए वर्क करते हुए, ठीक है ना। वो उसको मॉर्निंग में टी बनाता था, फिर उसके पूरे दिन सप्लाई जो होती थी खाने पीने की चीज़ें वो ख़रीदता था जाके, और एक आध ₹1 करीब वो प्रॉफिट कर लेता था कि भाई कोई थोड़े बहुत पैसे बचे या कोई चीज़ कम ले आया, ऐसे करके वो ₹1 बचा लेता था, ₹1। और वो उसको लगता है कि हरी को कि जो अनिल है उसको पता है कि मैं ऐसे चोरी कर रहा हूँ, मैं ऐसे जो मनी है वैसे बना रहा हूँ ऐसे, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो माइंड नहीं कर रहा था इन सब चीज़ों को। अनिल मेड मनी by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तब जो अनिल था वो कुछ ना कुछ लिखता था, ही वॉज अ राइटर, है ना। और वो एक वीक
और बोरो करता था कि भाई मैं 1 वीक में आपको कुछ लिख के दे दूंगा, और उसके बाद उसको देता था जो भी काम था, और अपने चेक के लिए वेट करता था। जब भी उसको चेक मिलता था वो सेलिब्रेट करता था। ये देख के उसको लगता था कि क्या बेकार की चीज़ है ये, क्या लिखता रहता है मैगज़ीन्स के लिए, और क्या लिविंग अपनी मतलब कैसे जी रहा है ये। हरी को लगता था कि अनिल के लिए। वन इवनिंग ही केम home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity of doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met, and this is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब एक दिन क्या, अनिल जो है वो बंडल लेके आया मनी नोट के, और वो बोलता है कि मैंने अपनी बुक जो है वो पब्लिशर को सेल कर दी है। और उसने देखा कि रात को ये जो नोट हैं, पैसा है, वो मैट्रेस के नीचे दबा के रख रहा है। तो अब हरी जो है उसको था कि भाई मेरे को 1 मंथ हो गया इसके साथ इसके लिए काम करते हुए, और मैं शॉप से शॉपिंग जो करता हूँ तो थोड़े थोड़े चीटिंग कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन मैंने कोई बहुत बड़ा चोरी नहीं करी है। बोलता है कि मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि मैं इसके साथ चोरी मतलब इसको रॉब करके चला जाऊँ, क्योंकि इसने मेरे को की भी दे रखी है और बहुत इजी है इसके साथ चीटिंग करना। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन क्या है कि जो सिंपल और इजी गोइंग पर्सन है उसको रॉब करने में मज़ा नहीं है, क्योंकि जो आपको ट्रस्ट करता है उसको रॉब करने में मज़ा नहीं है, उसके साथ चीटिंग करने में मज़ा नहीं है। क्योंकि जो ग्रीडी पर्सन है उसके घर में चोरी करो तो ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि जो सिंपल पर्सन है उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो उसके घर में चोरी हो गई है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रस्टिंग और सिंपल पर्सन है। क्योंकि इसीलिए अनिल के साथ चीट करना या उसको रॉब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था हरी के लिए। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। लेकिन वो फिर बोलता है कि नहीं, अब मुझे जो मेरा रियल वर्क है उसको करना है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊँगा। और बोलता है कि मैं इसका ये पैसा ले लूँगा, क्योंकि अगर नहीं लिया तो ये वैसे भी क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के ऊपर उड़ा देगा, और ये मुझे वैसे भी पे तो करता है नहीं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब रात हुई, वो जाके सो गया अपने। अनिल को तो नींद आ गई, वो सो गया। और जो हरी था वो अपने बैल्कनी में जाके देखने लग गया, सोचने लग गया कि अगर मैं अभी इसके पैसे लेके निकल जाऊं तो मैं 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो पकड़ के लखनऊ चला जाऊंगा। तो जाता है चुपचाप से, और अनिल जो है वो पीसफुली सो रहा होता है। उसके फेस पे देखता है कि अनिल का जो फेस है वो बहुत ही क्लियर है। बोलता है कि मेरा जो फेस है, मैं तो 15 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरा फेस इतना क्लियर नहीं है। बोलता है पर मेरे जो फेस पे जो लाइंस हैं वो स्कार्स हैं, लाइंस नहीं है, मतलब मार्क नहीं है, वो बेसिकली स्कार्स हैं, चोट के निशान हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, बट व्हेन आई फाउंड देम I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly
crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. वो उसके मैट्रेस पे हाथ डालता है और नोट्स निकाल देता है ना, बंडल। तो एकदम से अनिल उसकी तरफ करवट लेता है और वो डर जाता है हरी, और फटाफट से पैसे लेके रूम के बाहर जाके भागने लग जाता है। और धीरे धीरे रुक के अपने पजामे की स्ट्रिंग में उसने क्या पैसे रखे हुए होते हैं, फिर वो काउंट करता है धीरे धीरे वॉक करते हुए कि 600 रुपीज़ हैं। तो बोला कि 600 रुपीज़ से तो क्या मैं एक वीक या फिर 2 वीक तक तो बहुत ही आराम से लग्जूरियस लाइफ जो है वो लीड कर सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain and lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. जब वो स्टेशन जाता है तो क्या रुकता नहीं टिकट के लिए और फटाफट से प्लेटफॉर्म पे जाता है, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो चल रही होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ किसी भी डब्बे में कूद के चढ़ना था, लेकिन सडनली वो रुक जाता है और पता नहीं क्यों वो चढ़ नहीं पाता, और उसका चांस जो है भागने का वो छूट जाता है। वो क्या पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला होता है। वो सोचता है कि यार पता नहीं क्यों नहीं गया मैं। फिर सोचता है वो कि अगर मैं होटल में रुक सकता हूँ किसी छोटे में, लेकिन क्या सस्पिशियस हो जाएगा, ये लोग क्यूरियसली देखने लग जाएंगे कि क्यों आया है ये बच्चा। तो वो क्या बाज़ार की तरफ धीरे धीरे वॉक करने लग जाता है। अब वो सोचता है कि अगर कोई ग्रीडी पर्सन है तो वो उसका फेस कैसा होता, उसको बहुत गुस्सा आता है ना। ग्रीडी पर्सन होता तो वो डरता रहता, रिच पर्सन उसको गुस्सा आता, पुअर पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर देता कि अब चोरी हो गई है तो हो गई। लेकिन उसको पता है कि अनिल जो है उसका फेस क्या होगा। उसको अगर जब पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हो गई और मैंने कर दी है, तो वो सैड हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। क्यों? उसको इसलिए दुख नहीं होगा कि पैसे चले गए, उसको दुख होएगा कि मैंने जो ट्रस्ट किया है वो ट्रस्ट टूट गया। I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quietly heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and cold wind blew the rain across my face. अब वो एक खाली जो प्लेस है, मैदान है, वहाँ पे जाके किसी बेंच में बैठ जाता है, और रात हो जाती है तो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि नवंबर का टाइम होता है तो सर्दियाँ होती हैं, ठीक है ना। वो क्या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, उसको कंफर्टेबल नहीं होता है, और वो चुपचाप बैठा रहता है, और धीरे धीरे बारिश भी होने लग जाती है। तो उसकी जो शर्ट और पजामा है वो उसकी स्किन से चिपक जाते हैं, और जो बारिश की बूंदें हैं वो उसके फेस पे आती हैं। चलिए बाकी का अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी आप जितना भी पढ़ा अपन ने यहाँ तक इसको पढ़िएगा, और जो प्रॉब्लम है वो मुझसे नेक्स्ट वीडियो जो ऑनलाइन क्लास होगी अपनी के लाइव क्लास होगी तब उसमें पूछ लेना।
अच्छा, बाकी जो आगे के जो पेजेस बचे हैं उसमें हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है और वो लिख लेना अपनी कॉपी, मतलब बुक में ही लिख देना।